Hello students, uh, I hope you have seen the last video of chapter number 5. आपको पता होगा कि हम लोग 5th चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं, which is a cell. Cell is considered as structural and functional unit of the each and every living organism on this earth, and we have discussed it in a detailed manner. In the last class we have understood the processes related to plasma membrane, that is osmosis, diffusion, and also we studied about different types of solution. I also told you to perform one activity related to resin, which is dry grapes. The solution related to plasma membrane, which affects the we can say the structure of plasma membrane, is isotonic solution, hypotonic and hypertonic. Then we started one important topic which is called cell wall, which is not present in animal cell but present in plant cell, fungal cell, algal cell and bacteria cell as well. This protective layer, I have also given the example of this particular aluminum lining of this board, and you can see that this is the protective layer of this whiteboard. ये protective layer है whiteboard का, which gives a protection to this whiteboard. Similarly, cell wall provides a protective environment to the inner component of the cell, which has cell membrane and other parts, which we are going to study next. Our understanding of cell wall is that it is made up of cellulose, वो cellulose से बना है, and it has the ability to protect the cell in difficult conditions. There are certain processes related to cell wall. We are going to understand process related to cell wall. That we are going to understand, and that process is called plasmolysis. The name of this process is plasmolysis. प्लाज्मो का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड लाइसिस का मतलब होता है डेथ, या तो लाइसिस का मतलब हो सकता डेथ भी बोल सकते हैं और डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब ऐसी प्रोसेस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। किस तरह से होता है? लेट अस अंडरस्टैंड। हमने 3 टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया। These 3 solutions were hypotonic, isotonic and hypertonic. सेल के एनवायरनमेंट में इनका एक बड़ा रोल होता है। जब सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल स्वेल हो जाता है। जैसे ड्राई ग्रेप्स का एग्जांपल था। ड्राई ग्रेप्स when they were put in the isotonic solution, due to the process of osmosis, cells swell, उनका जो बाहर का लेयर उतर पड़ जाता है। मैंने आपको वो बताया था कि if you can weigh, मतलब आप अगर आप वजन कर सकते हो तो वजन करके भी चेक कर सकते हो कि पहले ग्रेप्स को डाला पानी में, फिर 1-2 घंटे के बाद वही ग्रेप्स को पानी में से निकाल के उसका वजन करते हैं, तो पहले के जो वजन से बाद का जो वजन जो होता है वो ज्यादा हमें देखने को मिलता है। Which is a clear cut understanding that water has rushed into the cells, and that is why that water was hypotonic solution, and that is why cell swells. In isotonic solution, no change is observed, and in hypertonic solution, what will happen?
that we are going to understand. To understand this, you must know what is hypotonic solution. You must know what is isotonic and what is hypotonic. Other than that, you won't be able to understand plasmolysis. So if you have not watched the previous video, please go and watch it and then watch this video. Otherwise, you won't be able to understand what is plasmolysis. You will be understanding on a superficial level, but you won't be able to understand in a detailed manner. Let's understand this process which is called plasmolysis by an illustration. Plasmolysis. When cell is put in hypertonic solution. When cell is put in hypertonic solution, what is going to happen? So when cell is put in the hypertonic solution, let us consider that cell को अभी hypertonic solution में डाला है और उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिकली एग्जाम्पल उसका कर रहे हैं. ये एक्टिविटी किससे करते हैं? रियो नाम के लीफ होते हैं. रियो लीफ एक टाइप का लीफ होता है, वो लीफ में हम ये देख सकते हैं. We don't have microscope and other practical assembly, so we cannot understand it practically, but we can understand it theoretically. रियो लीफ जो है उसको लेना है, उसको सॉल्ट डाला हुआ पानी होगा जिसको हम सॉल्ट सॉल्यूशन कहते हैं. उसको हमें किसमें डालना है? सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डालना है और उसके बाद हमें देखना है माइक्रोस्कोप के नीचे की सेल की हालत क्या है. प्लांट सेल. प्लाज्मोलाइसिस जो होता है वो लिविंग प्लांट सेल से जुड़ा हुआ प्रोसेस है. लिविंग प्लांट सेल. एनिमल सेल में ये देखने को नहीं मिलेगा. एनिमल सेल में भी होगा लेकिन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, बट प्लांट सेल में क्या है? सेल वॉल है. तो कंसीडर दिस इज अ प्लांट सेल. समझ लो ये प्लांट सेल है और उसके अंदर द इनर पार्ट ऑफ इट्स इज कॉल्ड व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. And the middle portion, which is our next theory, is called nucleus and it has chromosome inside it. This is a typical structure of plant cell. I have not shown the organelles because it will create a complex scenario for you. So to simplify, nucleus को भी हम अभी के लिए nucleus को हम लोग remove कर देते हैं डायग्राम में से. ऐसा नहीं है कि वो present नहीं है, तो है. जब ये सेल, when this cell is put in hypertonic solution, अभी hypertonic में नहीं था, ये सेल को हमने salt solution के अंदर डाल दिया. थोड़े टाइम के बाद अगर इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? प्रोसेस मैंने आपको बताया प्लाज्मोलाइसिस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मर जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है. तो सेल का जितना भी पानी है वो बाहर निकल जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कोने में आके श्रिंक हो जाएगा. क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. तो सेल के एक कोने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो गया है क्योंकि सेल जो है वो क्या हो रहा है? सेल जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है उसको. Which solution? Hypertonic. And hypertonic solution में रखा है उसकी वजह से water will move away. Hypertonic solution जो पढ़े थे उसमें क्या था? This is the solution in which when cell is put, water comes out of the cell. क्यों? क्योंकि बाहर water का concentration कम है. किसमें? Salt solution में water का concentration कम है और प्लांट सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है. तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ वाटर वाया सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. सेल
में वाटर ज्यादा था, सॉल्ट सॉल्यूशन में पानी कम है, तो यहाँ से पानी सॉल्ट सॉल्यूशन में चला जाएगा, तो इसकी वजह से इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाएगा। तो सेल को जब हम लोग रखते हैं तो इस तरह का होता है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट सेल वॉल इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, दैट इज व्हाई सेल वॉल इज नॉट डिस्ट्रॉयड। सेल वॉल का शेप देखो कि आप तो वैसे का वैसा है, बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज देयर हैज चेंज्ड। दिस इज अ this is an important understanding related to cell, that cell is a protective layer, but protective layer है, लेकिन उसको जो प्लाज्मा उसको जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस दिखाता है, और सेल वॉल अगर जिस ऑर्गेनिज्म में होता है उसमें हमें ये प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस इजीली दिख जाती है। सो दिस वाज द understanding related to what cell wall and plasma membrane, and one process which is called plasmolysis. Okay, shrink हो गया plasma membrane, shrink हो गया cell wall, cell के होने। Let's understand the definition of plasmolysis. The process in which water inside the cell comes outside and the plasma membrane of cell shrinks down. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, प्लीज नोट इट डाउन फॉर योर रेफरेंस। द प्रोसेस इन विच वाटर इनसाइड द सेल कम्स आउटसाइड, द प्रोसेस इन विच सेल वाटर कम्स आउटसाइड फ्रॉम सेल and plasma membrane shrinks down. This process is called plasmolysis. So plasmolysis की definition थी जो हमने समझी। Now you can understand that what is actually happening in plasmolysis. Water is coming outside the cell, and why? Because cell is put in the hypertonic solution. I hope you have understood this topic well. Let's move ahead to our topic which we have not finished yet, that is cell wall. Protective layer है, it is a protective layer, and that is why cell wall of bacteria, fungi, plants protect their cell, protect their cells. बैक्टीरिया, फंगाई और प्लांट्स के सेल्स को सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है इन डिफिकल्ट environmental conditions. In difficult environmental conditions, the cell wall which is present in fungi, bacteria and plants protects them. That is why cell wall plays an important role. और plant cells के compare में ये जो बैक्टीरिया, फंगाई और प्लांट्स है, एनिमल सेल के कंपेयर में बैक्टीरिया, फंगाई और प्लांट्स है, वो एडवर्स कंडीशन, डिफिकल्ट कंडीशन, एक्सट्रीम नहीं बट थोड़ी माइल्ड कंडीशन में भी वो सर्वाइव करेंगे, जबकि एनिमल सेल्स जो होंगे वो उतने जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं है, तो उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो सकता है, बट इनको कोई उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। माइल्ड कंडीशन में अगर माइल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में भी अगर इनको रख देंगे तो दे कैन सर्वाइव। ओके, दैट इज व्हाई द नेचर वी कैन फाइंड प्लांट्स, bacteria and fungi, especially bacteria and fungi everywhere. Okay.
ओके, फंगाई और बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हर जगह पर हमें देखने को मिलते हैं. दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, मींस दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर. दिस वाज आवर अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू cell wall, and cell wall is very important process. So next we will study the most important part, and that is nucleus, that we are going to understand. So I am going to start session about nucleus. So let's understand one very important organelle, and that name is nucleus. Let's understand nucleus and its role. So let me tell you one thing, that most important organelle क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पार्ट है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है. मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली इन प्लांट एंड एनिमल. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है. समझ लो कि जैसे बॉडी का इम्पोर्टेंट ऑर्गन ब्रेन है सबसे, उसी तरह से सेल का जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस है. इट इज अ ब्रेन ऑफ अ सेल. हम कंपेयर कर सकते हैं ब्रेन के साथ. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ न्यूक्लियस इज अरेंज्ड इन अ सेल. तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, बीच में प्रेजेंट होता है. इस तरह से हमने अनियन सेल्स जो अनियन सेल्स जो पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि सेल्स कुछ इस तरह से अरेंज थे. ओके, और ये जो ऊपर का ये जो था वो सेल वॉल था. ये जो थे वो क्या थे? सेल वॉल. और अंदर का जो था वो क्या था? अंदर का जो था वो है न्यूक्लियस. बट व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज दैट ये जो न्यूक्लियस होता है उसको हमने पिंक कलर से कलर होते हुए नहीं देखा था. और स्टेनिंग के वक्त हमने ये भी जाना था कि आयोडीन सॉल्यूशन भी ऐड किया जाता है. जब माइक्रोस्कोप की जो स्लाइड बनती है उसके पहले जब हम ओनियन का जो पतला लेयर होता है उसको कट करते हैं, उसके अंदर हम सेफ्रेनेट भी डालते हैं और आयोडीन सॉल्यूशन भी डालते हैं, और उसके बाद उसको स्लाइड पर रखते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व करते हैं. एंड व्हाट interesting fact we came to know at that time but did not discuss it. It would have created a huge confusion. That is why I have not discussed that हमने iodine solution डाला था and all. Iodine solution क्यों जरूरी था? क्योंकि iodine solution जो था वो ऐसा solution था जो certain part को कलर देता है. Whatever material हमारे आसपास जो भी material होता है, जब उनको डाई करते हैं, कलर करते हैं, तब वो अपनी कलर लेने की एबिलिटी के हिसाब से कलर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ट्राई टू कलर, इफ यू ट्राई टू डाई समथिंग बट इट वोंट अटैच प्रॉपरली बिकॉज वो उसके साथ मैच नहीं हो रहा. सिमिलरली द पोर्शन ऑफ सेल वॉल वो जो था वो लाइट पिंक था, बट ये जो थे वो डार्क पोर्शन थे. आप अभी भी बुक के अंदर वो डायग्राम देख सकते हो. फर्स्ट सेकंड पेज पे बुक के है, फर्स्ट पेज, यू मस्ट हैव सीन इट. बट उसमें ये जो था वो लाइट पिंक से स्टेन नहीं हुआ था. उसका मतलब ये है कि सेल के जो कंपोनेंट है, द कंपोनेंट ऑफ द सेल्स take stain according to their structure, their chemical compatibility. देखो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में स्टेनिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो न्यूक्लियस को जो हम स्टेनिंग करना मतलब कलर प्रोवाइड करना. स्टेनिंग का मतलब होता है टू प्रोवाइड कलर. क्यों जरूरी है? क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हमें ऑब्जर्व करना है
if we want to observe certain cell organelle under the microscope, we require staining. मतलब वरना माइक्रोस्कोप के नीचे सारी चीज कलरलेस दिखेगी. That is why we put certain dyes like saffronin ऐड किया था, iodine ऐड किया था. They are stains, means different types of dyes. उसको हम staining कहते हैं. तो parts of cell takes different stains for कलरिंग. उनको कलरिंग इफेक्ट देने के लिए वो अपने केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको क्या कहते हैं, उसके साथ बाइंड होते हैं. ये जो मेरा हाथ है वो कंपैटिबल है ये हाथ के साथ. ओके, दैट इज व्हाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो रहा है. तो सिमिलरली एक डाई है और सेल का एक पार्ट है. तो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस जो होता है ना वो अलग तरह की स्टेनिंग रखता है. क्यों? क्योंकि उसके कंपोनेंट है वो अलग टाइप के हैं. न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट होते हैं ना, जिसको हम डीएनए कहते हैं, वो एसिडिक होते हैं. तो वो एसिडिक है इसलिए उनकी डाई भी उस तरह की होनी चाहिए. ये मैं सिंपलेस्ट वे में आपको समझा रहा हूँ. इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू अंडरस्टैंड इफ वी गो टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर लेवल. लेकिन वो आपके अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंचेंगे, बट मैं आपको सिर्फ उतना बता सकता हूँ कि जो बॉन्डिंग जो होता है, बॉन्डिंग कब होता है जब हमें कंपैटिबिलिटी मिलती है. कंपैटिबिलिटी मतलब अंडरस्टैंडिंग. तो ये बॉन्डिंग, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा क्योंकि आप दोनों की जो समझदारी है वो परफेक्ट है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो. आपका कोई सिस्टर है, ब्रदर है. उसी तरह से सेल की ऑर्गेनेल्स जो होती है दे शो कंपैटिबिलिटी, अफेक्शन टुवर्ड्स सर्टेन लाइन्स. दैट इज व्हाई न्यूक्लियस का जो स्टेनिंग है वो अलग कलर से स्टेन होता है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, दैट न्यूक्लियस का किस तरह से स्टेनिंग होता है. लेट्स अंडरस्टैंड न्यूक्लियस एंड इट्स पार्ट्स. तो हम लोग न्यूक्लियस को पार्ट वाइज पढ़ेंगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ अ सेल. तो इसको हम लोग, जैसे हमने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोसेस से समझा था, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियस एंड इट्स पार्ट्स. तो इफ वी मेक अ चार्ट दैट न्यूक्लियस के कौन से पार्ट हैं, तो पार्ट मतलब कि उसके अंदर क्या क्या होता है. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, फिर क्रोमोसोम्स उसके अंदर होते हैं. क्रोमोसोम्स भी क्या होता है, तो क्रोमोसोम डीएनए होता है, उसके अंदर क्रोमेटिन नाम का एक फाइबर होता है, प्रोटीन भी होता है. तो इस तरह के पार्ट है न्यूक्लियस के डिफरेंट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमोसोम है, डीएनए, क्रोमेटिन, प्रोटीन है. दूसरा क्या है, डीएनए के ऊपर भी क्या होता है, डीएनए के ऊपर होते हैं जीन्स. क्रोमेटिन किससे बने होते हैं, तो क्रोमेटिन fibers. Please note it down or take a screenshot of this because this is the whole outlook of nucleus. You will be understanding this. If you understand theory, then you just have to watch this chart. You would be learning nucleus in a nice manner while preparing for the exam when time is limited. Let's understand the theoretical portion of nucleus. Let's understand how it works and what are the different parts. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं with nuclear membrane. Let's understand with nuclear membrane. What is nuclear membrane and how it plays a significant role with other part of cell. Nuclear membrane जो होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो it is doubled layer.
डबल लेयर होता है, मतलब उसके दो लेयर होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो इस तरह के दो लेयर का होता है, अंदर जो होता है वो क्रोमोसोम होता है, दो लेयर है, प्लस उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर इस तरह के क्या है, ये जो है ना उसको हम कहते हैं पोर्स। इट हैज पोर्स टू ट्रांसफर मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। सेल वॉल के अलावा का जो पार्ट है ना उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म है। तो ये बीच में होगा, तो साइटोप्लाज्म से कोई चीज अंदर लानी है, इसके अंदर से कोई चीज बाहर भेजनी है, इसकी वजह से ये पोर्स होते हैं। पोर्स का काम क्या होता है? पोर्स आर जनरली फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जब हम लोग सेल की दूसरी ऑर्गेनेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ पोर्स। सेंट्रल रोल played by pores to transfer the message। मैसेज को ट्रांसफर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। So this was the structure of nuclear membrane, that it is double layer, दो लेयर है और उसके पास pores होते हैं। Okay, so let's understand another part which is most important part for each and every organism, and that is chromosomes। क्या कहते हैं उसको? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर एक कॉइल्ड फॉर्म होता है, बहुत ही कॉइल्ड फॉर्म, इस तरह का एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स। कॉइल, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, तो हम क्या कहेंगे? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो, जब ये समझ लो कि एक सेल है और उसका एक न्यूक्लियस है, जब ये सेल डिवीजन की प्रोसेस करता है, when this cell performs the process of cell division, ये क्रोमोसोम कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो ये जो शेप है उनका, एक ऐसा शेप है, ये रॉड शेप बोलते हैं इसको। तो they are visible as rod shape when cell division is going on। जब सेल डिवीजन हो रहा है तो वो इस तरह के रॉड शेप के दिखते हैं, वरना वो कॉइल फॉर्म में दिखेंगे। When cell division is going on, they will be observed as rod shaped structure। Okay? DNA, deoxyribonucleic acid, DNA उनका एक पार्ट होता है, DNA उनका एक पार्ट होता है किसका? क्रोमोसोम का। उसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा तो वो प्रोटीन और लिपिड का बना था, उसी तरह से आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड एसिड। प्रोटीन और एसिड के वो बने होते हैं। कौन सा प्रोटीन होता है उनके पास? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन नाम का प्रोटीन उनके अंदर प्रेजेंट होता है और एसिड होता है जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दिस वाज अबाउट few characteristics of chromosomes। Let's understand another characteristics about chromosomes। तो दूसरे कुछ characteristics
कौन से? तो chromatin fibers are, we are still studying chromosomes, chromosomes को ही पढ़ रहे हैं. Chromatin fibers are present and these fibers make chromosomes. So this was the topic which are present in our book कि क्रोमोसोम क्रोमेटिन नाम के फाइबर से बने होते हैं. We are still studying chromosome and I would like to give you an idea about one very important part and that is DNA. DNA जो होता है segment of chromosome जिसको बोलते हैं, segment of DNA जो होता है वो, और उसके ऊपर present होते हैं genes जो functional unit है DNA का. तो DNA का फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. DNA is या फिर DNA contains information of inheritance आप जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी ये वीडियो देख रहे हो, उसमें से कुछ अपने पेरेंट्स, जो कुछ अपने मॉम जैसे दिखते होंगे, कुछ अपने डैड जैसे दिखते होंगे, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. अगर आप नीटली ऑब्जर्व करोगे अपने हाथ, इफ यू ऑब्जर्व योर हैंड्स, तो वो किसी के साथ तो मैच करेंगे. आपके फादर के हाथ, आपके मॉम के हाथ, या तो आपके फादर की फैमिली से, या तो आपकी मदर के किसी के फैमिली में से आपका उनके जैसा दिखा होगा. तो उसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं. फादर मदर के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो अपने सन या डॉटर में आते हैं, पेरेंट्स टू जनरेशन. तो वो कैसे आता है? डीएनए में से. डीएनए क्योंकि आपके फादर और मदर का डीएनए आपके अंदर है, तो वो डीएनए जो होगा वो आपके फादर और मदर का है. उसकी वजह से आपके अंदर भी उनके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स. ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस तरह का होता है. हाइट, हेयर का जो टेक्सचर है, शेप ऑफ हैंड्स है, नेल्स, टाइप ऑफ फिंगर्स, टाइप ऑफ इवन दो इंटरनल ऑर्गन लाइक टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. कोई फादर और मदर को जो अगर डायबिटीज होता है तो उनके बच्चों के अंदर भी डायबिटीज हो सकता है. डायबिटीज आपको पता होगा एक डिजीज का नाम है, जो शुगर रिलेटेड डिजीज. तो ये सारी चीज कैसे आती है पेरेंट्स टू चिल्ड्रन? उसका रीजन ये है क्योंकि डीएनए जो होता है वो इनहेरिटेंस का इंफॉर्मेशन. इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर of characters from parents to offspring. offspring किसको कहेंगे? आने वाली जनरेशन है. और ये जो जीन्स देखते हो वो क्या करते हैं? अलग अलग कैरेक्टर्स शो करते हैं. कलर ऑफ आई, आंख के कलर का एक जीन होगा, स्किन के टोन का एक जीन होगा. तो जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? Genes are functional units of DNA. फिर इन ब्लैंक्स पूछ सकते हैं. Dash are functional units of DNA. Genes. DNA को काम करने के लिए genes उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं. किसके ऊपर? DNA के ऊपर. So this was about chromosomes. क्रोमोसोम्स के पार्ट है जिसके बारे में हमने पढ़ा. लेट्स अंडरस्टैंड दैट ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं. यस, होते हैं. लेकिन
कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेल्युलर है, जिनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। उनके अंदर नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। आपके बुक में कुछ ऐसा एक डायग्राम होगा जिसमें ये जो क्रोमोसोम होता है वो फ्री फ्लोटिंग होता है इस तरह से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, जबकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इनको कहते हैं। प्रो मतलब क्या और कैरियोट मतलब क्या? तो प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? फ्री फ्लोटिंग होता है, और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड कहते हैं। और उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। और ये जो उनके पास है ये है फ्लैजेला, जो उनके मूवमेंट में हेल्प। तो न्यूक्लियोइड जो प्रेजेंट होता है उनके अंदर, न्यूक्लियोइड का मतलब होता है कि फ्री फ्लोटिंग डीएनए या फिर क्रोमोसोम क्या है? फ्री फ्लोट कर रहे हैं। वो यूकैरियोट सेल की तरह, यूकैरियोट सेल जो होता है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और उसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि क्रोमोसोम का कोई कवरिंग होता नहीं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इनकी साइज भी छोटी होती है और ये जनरली इनको हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। So this was all about nucleus. We have discussed about nucleus and cell in this class. ये जो न्यूक्लियस जो है वो आपको प्रोकैरियोटिक के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता, उतना आपको याद रखना है। दूसरी बात, आपको तुरंत ही ये टॉपिक खत्म होता है उसके बाद प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस भी दिया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो लेट मी गिव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मीनिंग मैंने आपको बताया। व्हाट इज यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक मतलब क्या? यू मतलब ट्रू और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस है और जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एंड द ऑर्गेनिज्म्स व्हिच डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स। So in today's class we have understood an important part of cell, and that is nucleus, and also understood the cell wall and उसकी related processes। तो ये जो प्रोसेसेस जो हमने समझी है, ऑर्गेनेल्स जो हमने समझी है, उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। In the next class we are going to understand cytoplasm, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus। ये तीन और उसके अलावा भी दूसरी ऑर्गेनेल्स को हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। This chapter is very important to understand the concept related to biology, so please watch this video if you have not understood the topics well. Okay, so I will see you in the next class, and please perform one activity. You have to do difference between eukaryotic and prokaryotic, and also उसको आपको लिखना है। आपके बुक में कुछ लाइंस बाकी है, उसको आपको कंप्लीट करना है। बुक में आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि एक डिफरेंस का टेबल बना हुआ है।
So I will see you in next class. Until then, goodbye and stay safe. Bye.